10th English. A letter to the god. यह GL फ्यूंटिस के द्वारा लिखा गया है। तो हम बिना आपका समय गंवाए आपका पेपर की तैयारी करवाने के लिए हम आपको डायरेक्ट पैराग्राफ से स्टार्ट करते हैं और साथ साथ हम आपको इसकी मीनिंग भी बताते रहेंगे, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर लाइफ, इंटायर मीन्स संपूर्ण, सॉरी द इंटायर वैली, इंटायर मीन्स संपूर्ण, set on the crest of a low hill. From this height one could see the river and field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. Okay. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning Lencho, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. डाउनपोर मीन्स होता है भारी वर्षा। ओके, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन, द वुमेन who was preparing supper replied, yes, good willing. The old boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, come for dinner. डिनर मीन्स होता है आपका रात का भोजन। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, the drop of rain began to fall in the northeast. Huge mountain of clouds could be approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain of his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10-cent pieces, and the little ones are 5 fives. With a, with a satisfied expression, he regarded the field of the rip corn with its flower draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along within the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins, the boys exposing themselves to the rain. एक्सपोजिंग विथ होता है अनावृत करते हुए। रिसेंबल मीन्स होता है मेल खाना। ओके, कर्टन मीन्स होता है पर्दा, और हेल स्टोन मीन्स होता है ओले। एक्सप्रेशन मीन्स होता है मुद्रा, यहाँ पे मुद्रा है। रिगार्डेड मीन्स ध्यानपूर्वक। ड्रैप्ड मीन्स होता है लिपटे हुए। ओके, इट्स रियली गेटिंग हेड बैड नाउ, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It not pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, and cornfield on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Salt means नमक। पेर्ल मीन्स होता है मोती। फ्रोजन मीन्स जमा हुआ। कलेक्ट मीन्स एकत्रित करना। ओके, now a leaf remained on the tree. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plant. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said, his son, a plague of locusts would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That might was a sorrowful one. All our work for nothing. There no one who can help us. We will go hungry this year. प्लेग मीन्स होता है कीट समूह। स्टॉर्म मीन्स होता है तूफान। पास्ट मीन्स गुजर गया। सोल मीन्स आत्मा। सैरोफुल मीन्स होता है दुखपूर्ण। लोकटस मीन्स होता है
टिड्डियाँ। तो चलिए हम इसका अनुवाद जान लेते हैं। हम आपको एक बार में पूरा समझा देते हैं। वह अगर संपूर्ण घाटी में एकमात्र एक नीची घाटी के शिखर पर अवस्थित था। उस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को और पकी फसलें के खेत को, जिसमें बिंदुओं की तरह फूल उगे थे, जो सर्वदा एक अच्छी फसल होने का वायदा दिलाते थे। एकमात्र चीज़ जिसकी जमीन को आवश्यकता थी वह एक भारी वर्षा या कम से कम एक बौछार थी। पूरे प्रातःकाल लेंचो, जो अपने खेत को घनिष्ठता से जानता था, ने उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवा कुछ अन्य नहीं किया था। अब हम वास्तव में ही कुछ जल प्राप्त करने जा रहे हैं महिला, अर्थात अब हम वास्तव में वर्षा होने वाली है प्रिय। महिला, जो रात्रि भोजन तैयार कर रही थी, ने उत्तर दिया, हाँ भगवान चाहे तो। लड़के खेतों में कार्य कर रहे थे, जबकि छोटे वाले घर के समीप खेल रहे थे, जब तक कि महिला ने उन सब की नहीं पुकारा, रात्रि के भोजन के लिए आओ। यह भोजन के दौरान हुआ था, जैसे कि लंचों की भविष्यवाणी की थी। वर्षा की बड़ी बूंदें गिरना आरंभ हो गई थी। उत्तर पूर्व में मेघों के विशाल पर्वतों को आते देखा जा सकता था। वायु स्वच्छ और मधुर थी। वह पुरुष किसी अन्य के कारण बाहर नहीं गया था, बल्कि अपने शरीर पर वर्षा के आनंद की अनुभूति प्राप्त करने गया था। और जब वह लौटा, उसने भावावेश में कहा, यह आकाश से वर्षा की बूंदें गिर रही हैं, नहीं गिर रही, ये सिक्के हैं। मतलब ये आकाश की बूंदें नहीं हैं, ये सिक्के हैं। बड़ी बूंदें 10 सेंट एंड और छोटे सिक्के छोटी 5 वाली के हैं। एक संतोषप्रद मुद्रा के साथ उसने पकी फसल के खेत को अपने फूलों के साथ वर्षा के एक पर्दे में लिपटे देखा। किंतु अचानक ही एक शक्तिशाली पवन के चलना आरंभ कर दिया और वर्षा के साथ बहुत बड़े ओले गिरने आरंभ हो गए। ये सचमुच में ही नए चांदी के सिक्कों से अवश्य मेल खाते थे। लड़के को अपने अनावृत करते हुए, अर्थात कपड़े उतार कर वर्षा में जमे हुए मोतियों को ओले एकत्रित करने बाहर दौड़ पड़े। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ। अब वास्तव में मौसम खराब हो रहा है, उस आदमी ने चिंता से कहा। मैं आशा करता हूँ कि यह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, किंतु यह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। एक घंटे तक घर पर, उद्यान में, पहाड़ी पर, अनाज के खेतों में, सारी घाटी में ओला वृष्टि होती रही। वह खेत ऐसा सफ़ेद हो गया जैसे नमक से ढका हो। वृक्षों पर एक भी पत्ता शेष नहीं रहा। फसल को पूर्णतः नष्ट कर दिया गया था। पौधों से फूल झड़ चुके थे। लंचों की आत्मा दुख से भर गई थी, अर्थात उससे अत्यधिक दुख हुआ। जब तूफान गुजर चुका था, वह खेत के बीच में खड़ा हो गया और अपने पुत्रों से कहा, टिड्डियों का एक समूह भी इससे अधिक छोड़ देता, अर्थात इतना नुकसान नहीं होता। ओलों ने तो कुछ नहीं छोड़ा। इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। वह एक दुख भरी रात्रि थी। हमारा सारा कार्य व्यर्थ रहा। कोई अनाज नहीं है जो हमारी सहायता कर सकता है। हम सब इस वर्ष भूखे रहेंगे। तो ये हमारा पहला ग्राफ था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारे वीडियो के चैनल में जाएं। हम आपको दूसरा पार्ट वहाँ पे दे देंगे। थैंक यू दोस्तों।